ایک پہلی لائن پوچھنا چاہوں گا, حفیظ سے پوچھتے تھے, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک ایسا پلیئر نہیں ہے جو وداؤٹ پرفارمنس سسٹم کے بغیر اس ٹیم میں آ گیا ہو. نہیں, اگر اس میں آپ پرفارمنس کی بات کریں تو فہیم اشرف کون سی پرفارمنس پہ ٹیم میں آیا؟ کون سی پرفارمنس پہ عثمان خان کو ون ڈے کرکٹ شامل کر لیا؟ کون سی پرفارمنس کے اوپر آپ نے سعود شکیل کو ون ڈے کے اندر دوبارہ ریکال کر لیا؟ تو بات یہ کہ آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بیسٹ ٹیم تھی ان کے مطابق, وہ ابھی بھی اپنی بات پہ وہی پرفارم ہے کہ جی یہی سب سے بیسٹ تھی. اگر یہ سب سے بیسٹ تھی تو آپ نے ان کی پچھلے 2 سالوں کی جو پرفارمنسز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پہلے راؤنڈ میں ایگزٹ ہو رہا ہے, کیا اس کو کبھی مانیٹر کیا؟ اگر یہ بیسٹ ٹیم تھی تو بیسٹ ٹیم کے اندر یہ فہیم اشرف یہ لوگ کیسے آ گئے؟ کیونکہ ان کو تو آپ نے خود جب آپ آئے ہیں کمپوزیشن کیسے بن گئی, آپ کہہ رہے ہیں یہ بیسٹ ٹیم نہیں تھی. کیونکہ بیسٹ ٹیم کے پرفارمنس جو تھے, جیسے بیسٹ ٹیم ہے ون ڈے کی بیسٹ ٹیم کے اندر بابر اعظم نمبر 3 پہ کھیلتا, وہ آؤٹ آف فارم ہے. آپ اس کو ایک اور چیلنج دے رہے ہیں کہ یار ایک تو آؤٹ آف فارم ہے, پلس تو اپنے کمفرٹ زون جس میں تو سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے تو وہاں سے اٹھ اور اوپننگ کرنا شروع کر دے. تو کیا پاکستان کے سسٹم میں بیسٹ اوپنر موجود نہیں تھے؟ موجود تھے, آپ نے بائی چوائس ان کو نہیں لیا. کیا پاکستان کے سسٹم میں بیسٹ پاسبل اسپنرز نہیں تھے؟ آپ نے بائی چوائس صرف ابرار کو اس میں سے پک کیا. اسامہ موجود تھا آپ کے پاس, یہاں تو کہہ دیں کہ اسامہ اویلیبل نہیں ہے, یا آپ کہہ دیں کہ شاداب اویلیبل نہیں ہے, یا آپ کہہ دیں کہ جو دوسرے اور جو کوئی آپشن جس نے بھی ڈومیسٹک میں پرفارم کیا وہ اویلیبل, سب اویلیبل تھے. بائی چوائس یو ڈیڈنٹ پک دوز. خوش دل کو آپ نے T20 کی جو PSL کی پرفارمنسز ہیں اس کی بیس کے اوپر یا BPL کی پرفارمنسز پہ لے آئی, تو یہ بیسٹ 11 نہیں تھی, بیسٹ ٹیم نہیں تھی. لیکن ان کی رائے کے مطابق ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بیسٹ ٹیم. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ 11 میں جو نسیم شاہ, شاہین اور حارث, انہوں نے کہا آپ دنیا کے کسی بھی ٹیم سے کمپیئر کر لیں تو مطلب ان کی کیپیبلٹی کی بات کر رہے تھے. بٹ بات وہی آ جاتی ہے شعیب کہ کیپیبلٹی ایک, ہاں ون ڈے میں سوال سب سے انٹروین کرو نا. میرا خیال ہے شاہین نے ایک میچ میں 2023 ورلڈ کپ میں مے بی آسٹریلیا کے خلاف 4 یا 5 آؤٹ کیے. آخری پانچا کپ شامی کا بھی اسی 3 دن پہلے 4 دن پہلے عمر زئی کل آخری پانچا کپ تھا. ایوریج کیا ہے بالنگ ایوریج اس کے؟ آئی انڈرسٹینڈ باقی ساری ٹیمیں اکنامک ریٹس اکنامکلی دیکھ لیتے ہیں کہ اکانومی ریٹس کیا ہیں ان کے. اوکے اسٹرائک ریٹ کیا؟ اچھا مجھے بتائیں, چلے ٹھیک ہے, یہ بات ابھی ان کی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہی بیسٹ تھا. آپ کے پاس 4-5 دن ہے, آپ جا رہے ہیں نیوزی لینڈ. میں نے کل سبا سے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بتا دیں کہ کون سے 15 جانے چاہیے. صرف سیکنگ یا چوری چلانے سے تو آئی تھنک پرابلم سالو نہیں ہوگی. وی اونلی بی ورکنگ آن دا ٹاپ پارٹ آف اٹ. دیکھو یار تمہیں تو پتہ ہی ہے, ان سب کو پتہ ہی ہے. جی بولے آپ ان سب کو پتہ ہی ہے, وہ غصہ نکالیں گے. اتنے نام انہوں نے بھی لیے ابھی. ہاں جی, میں نے آپ کو 12 پلیئر بتا دیے, اتنے نام لیے نہیں کرائیں گے. یار یہ ضد ہے. بات سنیں, ہم بھی سرٹن پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں, یہ بھی سمجھتے ہیں, سارے کو سمجھتے ہیں. ضد پہ اگر اتر آئے تو اس کا کوئی علاج نہیں, ٹھیک ہے نا. اب ضد ہے جی میں نے نہیں سیکھنا سنگل لینا, ٹھیک ہے. ایک گریٹسٹ پلیئر یوسف کہہ رہا نا آپ کو, یار تھوڑا سٹانس چھوٹا کر لو, ٹیپنگ کرنا سیکھ لو, ریسٹ ورک سیکھ لو. اس طرح پکڑ کے یہ ڈرائیو سے نہیں اسکور ہونے. ٹھیک ہو گیا, چلو ضد ہے کر لو. اب یہ کہہ دینا کہ میں نہ مانوں گا تمہاری بات, وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے تو پروگرام چل رہے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو کرتے رہیں گے. ایز آئی سیڈ وی آر پیڈ ٹو وائس آور اوپینینز, رائٹ؟ دیٹس دا کیس نا. غصہ ہی نکالیں گے, میں وہی بتا رہا ہوں, غصہ ہی نکالیں گے 3-4 پلیئرس کے اوپر, یہ ڈراپ کریں گے. اور اس کے بعد سیم مینجمنٹ, آئی تھنک حفیظ نے رائٹلی سیڈ کہ اگر یہی مینجمنٹ آپ کو سمجھ آتی ہے کنٹینیو کریں. آئی بلیو دیٹ کرنے دیں ان کو کنٹینیو. اور دیکھیں آپ 3 ایونٹ سے باہر ہو گیا آئی سی سی کے. ہاں جی ٹھیک ہے, ہر آئی سی سی ایونٹ کے بعد یہی ہوا, اس کی گردن اتار دو, یہ چینج کر دو, یہ چیئرمین چینج کر دو, یہ سلیکشن کمیٹی چینج کر دو. آپ 3 آئی سی سی ٹرافیز کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور وہی باتیں کر رہے ہیں. یس ٹھیک ہے. ایکچوئل سولوشن جو ہے اس کا, یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کی گردن اتار دو, اس کو اتار دو, اس کو. بھائی اگر 10 لوگ ہیں, 4 لوگ تو صحیح کام کر رہے ہوں گے نا بیچ میں, اس میں کچھ پلیئرز ہوں گے, اس میں کچھ سلیکشن کمیٹی میں ہوں گے, اس میں کچھ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر ہم نے اسی طرح ہی چلنا ہے تو ہم اگلی آئی سی سی کوئی بھی ٹرافی میں یہی باتیں کر رہے ہوں گے. یہ سولوشن نہیں ہے. آپ بتائیں سوالے پہ رہے ہو آپ کی اسی بات میں ایڈیشن کر لوں, آپ کنٹینیو کیجیے گا. 150 سے تقریباً پلیئرز ہیں مینٹوس کے انڈر. چیمپئنز کپ ہوا جس کو کہا ڈسکورنگ چیمپئنز.
मेंटोर्स का कितनी कंसल्टेशन परसेंटेज वाइज है सिलेक्शन में या आइडिया देने में? अभी वो एक सोल्यूशन बता रहे थे, वो भी सुन पहले सोल्यूशन, फिर उस पे भी आ जाते हैं। और आप सारे अलाउड हैं, आप सारे अलाउड हैं कि मेंटोर पे आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं, इसका क्या है, आप सारे ठीक है। सोल्यूशन इसका ये है कि भाई आप बैठो, जो स्टेक होल्डर्स हो, आप प्लान करो चीज को, और अगर आप किसी प्लेयर को नहीं भी लेके जा रहे हो उसको उसकी वजह बताओ। अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो या आप किसी को हटा रहे हो उसकी उसको वजह बताओ। उस वजह बताने के बाद फिर क्या है, मीडिया को भी आपने जवाब देना, वहां पे भी क्लियर मैसेज दो कि ये हमारी जो है चीजें हुई हैं, ये हम डिमांड करते हैं। और अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो आप किसी वजह से ड्रॉप कर रहे हो ना, तो उसे बोलो भाई हाँ ये इस वजह से मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूं और ये आप में फ्लॉज हैं, इन पे आप काम करें, ये उसका पाथवे है, ठीक है। उसके लिए पाथवे भी उसका सेट करो, मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए अब आपने इतना इन्वेस्ट करके बाबर पे, शाहीन पे, या जो भी है, रिजवान है, ये जो भी है, अब क्या जब उनका बेस्ट कितने साल के हैं, ये बाबर 30 साल का है, शाहीन क्या है 24-25, आप क्या उनको फेंकोगे नीचे? नहीं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनपे, आप उनको, हाँ उनपे जो फ्लॉज है आप उनपे काम करो ताकि उनको वापस लेके आओ, तो वापस आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को उस लेवल पे लेके जाए। उनके पास एक्सपोजर है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस तो दी हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल हायर लेवल पे कंसिस्टेंटली compete करने की, या जो उनकी वो परफॉर्मेंसेस जैसे कह रहे 5 आउट नहीं आ रहे, या लास्ट परफॉर्मेंस कब थी, भाई उसकी वजह पता करो, फिर उस पर काम करो और फिर उनको वापस लेके आओ इस चीज में। ये नहीं, देखे मेरी बात सुने, माँ बाप अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे फेंक नहीं देते, वो वापस रहता है, वो सर्विलेंस में रहता है, वो उस पर काम करते हैं। तो ये हमारे प्लेयर्स वो हैं। अगर तो आपने इनको फेंकना है तो बस ठीक है, फिर इसी तरह क्रिकेट चलाते रहो, हम हर आईसीसी ट्रॉफी में इसी तरह रोते रहेंगे। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप फेंक दो या ये कर दो वो कर दो, सोल्यूशन ये है कि आप उनकी मॉनिटरिंग करो, जो उनमें फ्लॉज हैं आप उन पे काम करो, उनका पाथवे बना के दो, और प्लेयर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी भाई एक्सेप्टेंस रखो अंदर, आपने जो भी किया था परफॉर्मेंसेस ठीक है, लेकिन आप में फ्लॉज हैं, उनको इंप्रूव करना है, तो वो एक्सेप्ट करो। अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अब ये तो वही बता सकते हैं, मेरे एरा में अगर माँ बाप बच्चे गलती करते हैं, डर ये रहता था अगर वो काट देंगे, ये भी था, तलवार भी लटका रहनी जरूरी है। देखिए हाँ बोले, नहीं आप कंटिन्यू करें, बात वो मैसेज, वो उससे मैसेज क्या जाता है दुनिया में। देखें 8 साल जी आप यार, मेरा सिंपल सा ना आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि 8 साल में अगर बंदा एक क्रिकेटर नहीं बन सका, बॉलर नहीं बन सका, बैट्समैन अच्छा नहीं बन सका, ठीक है ना, उसके अराउंड फीस में ठीक कह रहा है, वो मैनेजमेंट उसके अराउंड 15 चेंज होंगी, वो 8 वही है जी, ऐसे ही यही पॉइंट था ना उसका, तो कसूर वो ठीक कह रहा है मैनेजमेंट का। और यहाँ पे ये बात भी डिस्कस, ये भी ठीक कह रहा है, मलिक भी ठीक कह रहा है कि मैनेजमेंट भी स्टेबल नहीं। देखें यहाँ ये जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हम हार के आए, तो यहाँ पे ये बात भी डिस्कस होती रही और लोगों को बताया गया कि जी प्लेयर्स बदलना नहीं चाहते, और ये रिपोर्ट है ग्रांट ब्रैडबर्न की एज ए हेड कोच, यस, कि जब इनको प्लान दिया जा रहा था तो ये कह रहे थे कि आप अपने तरीके से स्कोर करो, इन्होंने तो ये मैनेजमेंट तो आती जाती रहेगी, हमने यहाँ पे रहना है, ये बातें हुई हैं, ये रिपोर्ट में लिखा है। हफीज भाई इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि मैनेजमेंट भी तो ग्रांट क्यों चला गया फिर, क्यों आपका वर्ल्ड चैंपियन कोच आपके हाथ से चला गया, मैनेजमेंट का भी इशू है। मैं शोएब भाई के साथ इसलिए अग्री करती हूँ कि देखिए आपको एक प्लेयर बनाने में आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, हाँ। आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जो भी है, बाबर की एक परफॉर्मेंसेज है, रिजवान की अपनी एक परफॉर्मेंसेज है, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हर बैटर को आप स्पेसिफाई करेंगे, अगर आपने पहले 5-6 में खेलना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप वो स्टैंडर्ड सेट कर दें, फिर मीडिया से प्रेशर आए, फिर कहीं से प्रेशर आए, आप उस स्टैंडर्ड को मत हिलाएं, जब तक वो प्लेयर उस चीज को ठीक नहीं करता आप उसको टीम में मत लाएं। बट अब ये कह देना कि बाबर का ही सारा कसूर है, अब ये कह देना इसका ही ज्यादा, ये गलत है। अभी मेरे लिए सबसे कंसर्निंग बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो अभी भी नहीं मान रहे कि उनसे गलती हुई। सबसे पहली चीज, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, एक्नॉलेज करना, हाथ उठाना, जी हमसे सिलेक्शन में गलती हुई है, हमने एक स्पिनर अच्छी बात की है, सो मेरे लिए बहुत जरूरी होती है, मेरे लिए बहुत बड़ा कहीं ये नजर नहीं आया कि जी हाँ वी मेड मिस्टेक्स, और हो सकता है कि हमारी सिलेक्शन, आप ओन अप कर लेते हो, क्या होता है,
कुछ होता है? जिद है बस। देखिए अगर आप ओन अप कर लो कि जी गलती होगी तो क्या हो गया? आपने अभी एक बात की कोई थी बात कि सारी चीजें बाबर सही नहीं होंगी, लेकिन इस बात को भी आप एग्री करेंगे कि जब आप एक सर्टन स्टैचर पर जाते हैं, आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो आपकी Expectation high हाई हो जाती है। आपसे लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे जो भी इनका इन्वेस्ट भी करते हैं, और उस पर कभी कभार फेलियर्स होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली इन्होंने कहा 5 विकेटें कब ली, आखिरी 100 कब हुआ? देखिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो एक ब्रेक है। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप डिस्कार्ड कर दें प्लेयर को, आप उनको ब्रेक पे भेजें। Discard की बात आप कोई नहीं उनको ब्रेक ही कह रहे हैं। ब्रेक ब्रेक ही कह रहे हैं। Discard क्या हमने मतलब 2-3 मरतबा बात की, और मैंने भी ये बात 2 से 3 मरतबा कह चुका हूँ कि इन तमाम प्लेयर्स को, जो हमारे इस वक्त के 5-5, 6-6 साल के एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, इनको किसी एक फॉर्मेट में साथ लेके चले और बाकी तीनों फॉर्मेट खेलने का प्रेशर इनसे दूर करें, क्योंकि हम सब ने क्रिकेट खेली हुई है। जो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक होता है ना फेलियर का, वो दिमागी है। आप सोच रहे होते हैं कि मैंने ये करना है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा। तो वहां पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप 3 फॉर्मेट का हर दिन उठ के परफॉर्म करने का प्रेशर अपने आप से 1 साल में आप, और किसी एक फॉर्मेट के अंदर जिसमें आपको लगता है और मैनेजमेंट को लगता है कि बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है, आप अपने आप को 6 माह के लिए, 8 माह के लिए बाकी प्रेशर से दूर कर दें। 1 फॉर्मेट खेले, उसमें अपने आप को एक्सेलरेट करें, अपनी परफॉर्मेंसेस की कॉन्फिडेंस को रीगेन करें। वंस योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट एवर आई वांटेड टू, आई एम डिलीवरिंग अकॉर्डिंगली, फिर आप दूसरे फॉर्मेट और तीसरे फॉर्मेट में जाएं। ये आई एग्री। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दे ऑल हैव टू सिट टुगेदर। मॉडर्न डे की बात कर लें आप, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स और विच फॉर्मेट, हु शुड बी प्लेइंग, ये सारी चीजें जो है ना स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। पहले तो इस चीज पे अलाइन होंगे, फिर आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। हम लोग ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहते हैं, हमारे डिसीजंस भी ओवरनाइट वाले हैं। एक दिन पहले जी ये अनाउंस कर दो, जो है अगले दिन उसको निकाल दो, इस तरह चीजें नहीं चलती हैं। देखें, हम सिस्टम पे सारे रोते रहते हैं, तो दुनिया के हमारे सामने प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी इतनी जल्दी खड़ा हो जाता है, वो बहुत बड़ी चीज थी कि उनका कैप्टन और वार्नर जो थे वो साउथ अफ्रीकन सीरीज में साइड पे क्यों फौरन खड़े हो गए? सिस्टम पीछे खड़ा हुआ था, सिस्टम स्ट्रांग था। तो हमारे सामने प्राइम एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है और जरा थोड़ा सबर रखना है। साडी कौम च सबर नहीं है, किसी भी चीज च देख लो, सबर दी ना मतलब कोई चीज ही नहीं है। हमें बस अभी कोई चीज कर दो। वही वाली बात आ गई कि नहीं सब वो कोई और बात, तो सब में चेंजेस हुए हैं ना, हर इवेंट में आपने चेंज किया। मुझे एक बात बताएं, तो क्या जो इंडिया जो था वो ट्रॉफी कब जीता? 10 साल के बाद जीता। 2013 में धोनी जीता था, ठीक है। उसके बाद कब जीते जाके? वेस्ट इंडीज और यूएस। नाराजगी ट्रॉफी नहीं उठाई इससे नहीं है, नहीं। फाइट, बराबरी का गेम, कि आपने खेल तो अच्छा रहे थे ना, खेल बीच में अच्छा देखिए रहे। मेरी बात सुने, वो विल पावर वाली बात है, इसीलिए मेरी बात चले सुने वापस आते कि हैं ये भी पे। प्लेयर्स जो हैं, ठीक है। ये भी जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो उनके साथ बात करे ना भाई, टीम गोल सामने रखो, पर्सनल गोल नहीं होना चाहिए। शोएब का मतलब ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ओवरऑल एक क्लैरिटी होनी चाहिए और अलाइनमेंट होनी चाहिए। और वही बात जो सना कह रही, डिस्कार्ड, आई थिंक डिस्कार्ड, कंटिन्यू दिस, डिस्कार्ड किसी ने नहीं कहा, क्योंकि डिस्कार्ड होता भी नहीं है। होता ये है आपका, जब नए प्लेयर को चांस मिलता है, जब वो फेलियर होता है तो वो वापस आ जाते हैं जो बाहर बैठे हुए। तो हमारे सिस्टम में से कोई कभी उस तरह से डिस्कार्ड नहीं होता। नहीं, गायब होते हैं, एक प्लेयर्स गायब होते हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि उनको ये मैसेज दें कि जब तक आप इस चीज को मैं ठीक बात नहीं कर रही करेंगे, हूँ आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, वो उस तरह के सिर्फ मेन प्लेयर्स के लिए नहीं ये होना चाहिए, मैं आपको- ये आपके सारे प्लेयर्स के लिए होना चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक लेना, पैसे भी कमांड है। एक ब्रेक लेते हैं।